जब तक सूरज चांद रहेगा, میں عزت مآب گورنر گلگت بلتستان جناب سید مہدی شاہ صاحب سے آج کی تقریب حلف برداری کی باضابطہ کارروائی کی باضابطہ آغاز کی اجازت طلب کرتا ہوں. سر اگر آپ کی اجازت ہو تو کارروائی شروع کریں. شکریہ سر. گورنر صاحب تقریب حلف برداری کے لیے باقاعدہ اجازت مرحمت فرما چکے ہیں. میری گزارش ہوگی قاری محمد ریاض صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں تاکہ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. معزز حاضرین، ابھی آپ کے سامنے آرڈر آف دی اوتھ پڑھا جائے گا. آرڈر آف دی اوتھ. Whereas the Gilgit-Baltistan Assembly, after the election of the Speaker and Deputy Speaker, proceeded to elect one of its members as Chief Minister in terms of subsections 3 and 4 of Section 36 of Government of Gilgit-Baltistan Order 2018, and whereas Mr. Amjad Hussain, member Gilgit-Baltistan Assembly, has been elected as the Chief Minister of Gilgit-Baltistan. Now, therefore, in performance of the functions set out in subsection 5 of Section 36 of the Government of Gilgit-Baltistan Order 2018, I, Sayyid Mehdi Shah, Governor Gilgit-Baltistan, do hereby call upon Mr. Amjad Hussain, Chief Minister-elect, to assume the office of the Chief Minister Gilgit-Baltistan and to make oath before me in the form set out in the first schedule to the said order before entering upon the office of the Chief Minister Gilgit-Baltistan. Signed, Governor Gilgit-Baltistan, Sayyid Mehdi Shah. آرڈر آف دی اوتھ آپ کے سامنے پڑھا گیا. اب میں عزت مآب گورنر گلگت بلتستان سے درخواست کروں گا کہ وہ نو منتخب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جناب امجد حسین صاحب سے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے عہدے کا حلف لیں. سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام اللہ الرحمن الرحیم. میں امجد حسین بحیثیت وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خدائے بزرگ و برتر کے نام سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مملکت خداداد پاکستان کا وفادار رہوں گا اور میں اپنے فرائض ایمانداری سے انجام دوں گا اور جو بھی دفتری راز بالواسطہ یا بلا واسطہ بحیثیت وزیر اعلیٰ میرے علم میں آئے گا اس کی اطلاع کسی بھی شخص کو نہیں دوں گا نہ کسی پر ظاہر کروں گا اللہ میرا حامی اور ناصر ہو.
ہم معزز وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سے گزارش کریں گے کہ حلف نامے پر اپنے دستخط ثبت کر دیں تاکہ یہ کیبنٹ کے ریکارڈ کا حصہ رہے گا۔ بہت شکریہ جناب گورنر گلگت بلتستان، اور ساتھ نو منتخب وزیر اعلیٰ کو بہت مبارکباد، اور اسی کے ساتھ ہم نو منتخب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جناب امجد حسین صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ آج کے ان معزز مہمانان سے خطاب فرمائیں۔ جناب امجد حسین صاحب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاضرین سے خطاب فرمائیں گے۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق واجعل لي من لدنک سلطانا نصیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ میں اللہ رب العزت کا بہت شکر گزار ہیں کہ آج جو 7 جون کو انتخابات کے نتیجے میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیابیوں سے اللہ پاک نے نوازا تھا، اور گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی لارجسٹ پارٹی بن کے ابھری۔ ایک طرف یہ اللہ تعالیٰ کی عطا تھی، دوسری طرف گلگت بلتستان کے ماؤں بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں کے علاوہ پیپلز پارٹی کے تمام قائدین کارکنان، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، ان کے دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ آج ہم سرخرو ہیں۔ الیکشن 2026 گلگت بلتستان کے نوجوانان اور خواتین کا اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ ان کی الیکشن مہم جو کہ دن رات جاری رہی، اسی سلسلے کی آج کڑی ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ موقع ملا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواران کو، ٹکٹ ہولڈرز کو حلقوں میں کامیابیاں نصیب ہوئی۔ نوجوانوں، ماؤں بہنوں نے انتہائی جوش جذبے کے ساتھ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا۔ یہاں پہ میں ڈسٹرکٹ دیامر کے عوام کا بہت شکریہ ادا کروں گا، جنہوں نے پہلی دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کو 2 نشستیں دی، اور ساتھ ساتھ نگر قوم کا بھی شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے گلگت بلتستان کے اس الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو 100% نتیجہ دیا اور 2 نشستیں دی۔ نگر اور دیامر سے پہلی دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھاری مینڈیٹ ملنا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پر اعتماد کا اظہار ہے۔ بلتستان اور گلگت ڈویژن روایتی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے حلقے تصور ہوتے ہیں، اور سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے بلتستان اور گلگت ڈویژن کے عوام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے سابقہ روایات کو برقرار رکھا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر اعتماد کیے۔ گلگت بلتستان کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھاری مینڈیٹ دے کر ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد کی ہیں۔ جناب چیئرمین، اس بھاری مینڈیٹ کی بنیادی وجہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا گلگت بلتستان کے نسلوں کے ساتھ 3 نسلوں کا رشتہ ہے۔ یہ مینڈیٹ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ رشتہ پاکستان پیپلز پارٹی کا، گلگت بلتستان کے عوام کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا، یہ 3 نسلوں کا رشتہ چل رہا ہے۔ آج
गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने बहुत सारे साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मरकज में एक जमात की हुकूमत हो और गिलगित बल्तिस्तान में किसी दूसरी जमात पर एतमाद का इजहार किया जाए। लेकिन आज हमने ये भी देखा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर एतमाद किया। ये हमारे कंधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। जनाब चेयरमैन, आपने यह सारी जिम्मेदारी मेरे नातवा कंधों पे डाली है। मैं दुआगो हूं कि अल्लाह मुझे इस मुश्किल तरीन जिम्मेदारी से नबर्द आजमा होने की तौफीक अता करे। मैं अपनी क़यादत का शुक्रगुजार होने के साथ साथ दुआगो हूं खुदाबंद बुजुर्गों बरतर हमें और हमारे साथियों को जो ऐवान में मौजूद है, मेंबरान गिलगित बल्तिस्तान असम्बली, अवामी ख्वाहिशात और जज्बात के ऐन मुताबिक अमल करने की सलाहियत भी दे, अहलियत भी दे और ताकत भी अता फरमाए। इस हुकूमत बनाने में मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब का, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का बहुत ही मशकूर हूँ, अमीर मुकाम साहब का मशकूर हूँ, हफीजुर रहमान साहब और उसकी टीम का मशकूर हूँ कि उन्होंने जमहूरी उसूलों की पासदारी की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने का मौका दिया। मैं यहाँ पर अलीम खान साहब का भी, उसकी टीम का, मियाँ खालिद साहब का, उसकी टीम का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस पूरे सियासी अमल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद की। आज गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक यूनानिमसली अनअपोज्ड इलेक्टेड, आपके पास सारे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सीएम है। और ये जो फनामना गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो पैदा हुआ या इसको कायम किया गया, इस पर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को और तहरीक इंसाफ हमारी अलीम खान साहब की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब चेयरमैन, जनाब मेरे गिलगित बल्तिस्तान के वासियों, मैं थोड़ा सा गिलगित बल्तिस्तान की अहमियत के ऊपर थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमारे खित्ते की क्या अहमियत है। गिलगित बल्तिस्तान दुनिया का बुलंद तरीन खित्ता है, जहां पे 7,000 ग्लेशियर्स पाए जाते हैं और ये 7,000 ग्लेशियर्स पोलर रीजन के बाहर जमीन पर दुनिया का सबसे ज्यादा ग्लेशियर आइस का जखीरा रखने वाला खित्ता गिलगित बल्तिस्तान है। ये थर्ड पोल मैसिव आइस रिजर्व है जो वतन अजीज पाकिस्तान के लिए बुनियादी तौर पर वाटरशेड का किरदार अदा करता है। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम 7,000 ग्लेशियर्स इंडस रिवर सिस्टम, जिसको चेयरमैन साहब मैं और आप सिंधु कहते हैं, इंडस रिवर सिस्टम को फीड करता है और पाकिस्तान के तमाम सूबों की ज़राअत की बुनियादी जो ज़रूरियात है वो गिलगित बल्तिस्तान के 7,000 ग्लेशियर्स पूरा करते हैं। और 26 करोड़ अवाम को जो पानी की सप्लाई है, पीने का जो पानी है, उसके अंदर भी गिलगित बल्तिस्तान के ये ग्लेशियर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। और इस वक्त जो तवानाई की, बिजली की जो हाइड्रो जनरेशन, जितनी हाइड्रो जनरेशन है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर भी गिलगित बल्तिस्तान के ये 7,000 ग्लेशियर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। कराकोरम, हिमालय, हिंदोकुश इको टूरिज्म और माउंटेनियरिंग टूरिज्म के ऊपर आलमी शोहरत रखते हैं। यहाँ के इन ग्लेशियर्स पर, इन हैबिटाट के अंदर नायाब वाइल्ड लाइफ का एक मतलब बहुत बड़ा एक हैबिटाट है इस खित्ते के अंदर, जहां पर दुनिया की नायाब तरीन वाइल्ड लाइफ हमारे पास मौजूद। ये हमारी अहमियत। दूसरी तरफ से हम देखें तो दूसरा जो हमारा पोटेंशियल है सियाहत का के हवाले से, हम सियाहत के एतबार से गिलगित बल्तिस्तान दुनिया का बहुत इंपॉर्टेंट खित्ता है। पूरी दुनिया की आबादी गिलगित बल्तिस्तान आना चाहती है। दुनिया जहां के तमाम सियाहती मकामात की निस्बत गिलगित बल्तिस्तान को सियाहत के हवाले से बहुत ज्यादा पोटेंशियल हासिल है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान पहुंचने के लिए जो सफर की गैर यकीनी सूरत हाल है, ये हम 78 साल में खत्म नहीं कर सके।
जब तक गिलगित बल्तिस्तान के लिए सफर की जो सहूलियात हैं उसमें हाइल रकावटों को खत्म करके आलमी ट्रेवलिंग स्टैंडर्ड्स फराहम नहीं करते, गिलगित बल्तिस्तान का सियाती पोटेंशियल से हम मुस्तफीद नहीं हो सकते। हमें ज़मीनी और हवाई सफ़र दुनिया के लिए सर्टेन बनाना होगा, यकीनी बनाना होगा। हमें सफरी सहूलियात के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अराइवल वीज़े की भी फैसिलिटी देनी होगी ताकि टूरिज़्म का जो पोटेंशियल है ये हार्वेस्ट हो सके। इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेशंस पर काम करने की ज़रूरत होगी। हमारे बहुत सारे डेस्टिनेशन मैनेजमेंट के प्रोग्राम हमें लॉन्च करने पड़ेंगे। बेजा आबादकारी को रोकनी पड़ेगी। रेंज लैंड्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा। नेशनल पार्क्स के अंदर जो हमारे पास फ्लोरा फाना है उनका तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद ही हम ये समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को एक टूरिज़्म डेस्टिनी के तौर पे इसको दुनिया में उजागर किया जा सकता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, टूरिज़्म से जब हम निकलते हैं माइनिंग मिनरल पे पहुंचते हैं। जेम्स माइनिंग मिनरल के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान दुनिया का अमीर तरीन खित्ता है। यहां पर प्रेशियस मेटल्स हैं, बेस मेटल्स हैं, यहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं, यहां पर गोल्ड एंड सिल्वर के डिपॉजिट्स हैं, यहां पर प्लेटिनियम के ग्रुप मेटल्स हैं। जेमस्टोन का बहुत ज्यादा जखीरा गिलगित बल्तिस्तान में है। ये सारे पोटेंशियल्स रखने के बावजूद इन पोटेंशियल्स का आज तक फायदा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को नहीं हुआ। इसके ऊपर भी हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। आगे आते हैं, हमारे पास जो एग्रीकल्चर है, लाइफ स्टॉक है, फिशरीज है। ये रवायती तौर पे गिलगित बल्तिस्तान को लाइफ स्टॉक एरिया तस्वुर करते थे। हमारे पास जो मौसम है वो शायद दुनिया के कहीं पर भी मौजूद नहीं है, और हमारे पास जो स्पेशीज आएंगी, जो फसलें होंगी, जो हमारे पास फल फ्रूट होंगे, जो हमारे पास लाइफ स्टॉक की जो नस्लें हैं या हमारे पास जो फिशरीज की नस्लें हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान के नायाब तरीन सेक्टर है। इस सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए वन विलेज वन प्रोडक्ट इंशाअल्लाह ताला हम करीब हम वन विलेज वन प्रोडक्ट का प्रोग्राम लॉन्च करेंगे और इन सारे सेक्टर्स के अंदर रिफॉर्म्स करके गिलगित बल्तिस्तान की देहात की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करेंगे। थोड़ा सा ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस पे भी बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान क्रॉस रोड्स ऑफ सेंट्रल साउथ ईस्ट एशिया माना जाता है। इसके बॉर्डर्स सेंट्रल एशिया से मिलते हैं, इसके बॉर्डर्स साउथ एशिया से मिलते हैं, इसके बॉर्डर्स ईस्ट एशिया से भी मिलते हैं। तो ये दुनिया का एक अजीब सा खित्ता है जो तीन रीजन्स को, तीन पैसिफिक्स को मिलाता है। साथ में चूंकि ईस्ट एशिया के साथ जो हमारा इस वक्त जो रोड लिंकेज है, ये एक साइड हमारी डेवलप हो चुकी है। साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के लिए काम करने की जरूरत है। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करना चाहेगी। और चाइना की तरफ से जो हम बॉर्डर ट्रेड करते हैं, अफगानिस्तान ताजिकिस्तान के साथ कम्युनिकेशन के सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए भी हमें काम करने की जरूरत पड़ेगी। जनाब चेयरमैन, यहाँ पे मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि चाइना बॉर्डर पे जो ट्रेड होती थी वो सीजनल होती थी। आप जब वजीर खारजा थे तो आपने इस ट्रेड, सीजनल ट्रेड को ऑल वेदर ट्रेड डिक्लेयर करने में आपने सिग्नेचर्स की, आपने मुझे भी बुलाया था और आपकी मौजूदगी में ये सीजनल से ऑल वेदर ट्रेड हो रही है। यहाँ पे मैं ये बात भी बताना चाहूंगा कि साइनो पाक एग्रीमेंट जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान हुआ था, उसका क्रेडिट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो ने एज फॉरेन मिनिस्टर उस वक्त साइन किए थे। वो साइनो पाक एग्रीमेंट उस वक्त से आज तक चाइना के साथ एग्रीमेंट मौजूद है और ये दोस्ती की बुनियाद जो रखी थी भुट्टो साहब ने, उसी का फल आज
थोड़ा बहुत जो मिलता है पाकिस्तान को भी मिलता है, गिलगित बल्तिस्तान को भी मिलता है, इस पे हम सब मुस्तफीद हो रहे हैं। साथ में जो सिपेक की बुनियाद रखी जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने और बाद में मियाँ साहब ने, उसके अंदर कंट्रीब्यूट किए। हम चाहेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के जो पोटेंशियल्स हैं, इन पोटेंशियल्स को हम अपना हमसाया मुल्क चाइना के साथ टाई अप करें और पीपीपी मोड के ऊपर इंशाल्लाह हम इन्वेस्टमेंट लाएं और जॉइंट वेंचर्स करें और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो डेफिशिएंसीज हैं, जो मुश्किलात हैं, उन मुश्किलात को हल करने की कोशिश करें। अगला जो हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है, हमारा एरिया और हमारी पॉपुलेशन 28,000 मुरब्बा मील केपीके से थोड़ा सा हम कम है, लेकिन आबादी बिल्कुल 17 लाख है। ये गुड गवर्नेंस की मिसाल हो सकती। गिलगित बल्तिस्तान का सूबा रेस्ट ऑफ द कंट्री के लिए गुड गवर्नेंस की आला मिसाल बन सकता है। इंशाल्लाह हम ट्रांसपेरेंसी को अपना प्राइम सब्जेक्ट समझते हैं, हम ट्रांसपेरेंसी को अपना फाउंडेशन स्टोन मानते हैं। हम तमाम सेक्टर्स के अंदर जो हमारे पास मौजूद है, उन तमाम सेक्टर्स पे इंशाल्लाह हम रिफॉर्म्स भी करेंगे और गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के लिए एक मॉडल सूबा भी बनाएंगे। ये तो थे जनाब चेयरमैन हमारे पोटेंशियल्स, थोड़े से हमने जिक्र किए हैं। अब एक लंबी फहरिस्त है हमारे मसाइल की, जिस पे बात की जानी चाहिए। अगर हम मैस पोटेंशियल्स पे बात करें और मसाइल पे बात ना करें तो फिर नाइंसाफी होगी। हमारा बजट जो इस पर हमारी रिक्वायरमेंट है या हमारा हक बनता है, वो 258 अरब का बनता है, जो कि वफाक ने हमें हर सूरत हमें देना है। जबकि फेडरेशन की तरफ से आज भी जो हमें रिसेंट जो बजट कमिटमेंट आई है वो 142 अरब की आई है। तो मतलब 100 अरब से भी ज्यादा की डिफिशिएंसी है, जिसको पूरा किए बगैर गिलगित बल्तिस्तान के इन जवानों के, इन खवातीन के मसाइल हल नहीं हो सकते। अगर हमने गिलगित बल्तिस्तान के जवानों को ट्रांसफॉर्म किया है, अगर गिलगित बल्तिस्तान के जवानों ने ऑर्गेनिक आपको बाहर निकल के आपकी पार्टी के साथ और दीगर सियासी जमातों को वोट दिया है, तो इन जवानों की होप को नहीं तोड़ी जानी चाहिए। इनकी उम्मीद के लिए भी, इनकी उम्मीद की बहाली के लिए। और मेरी माओ बहनों ने जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस सियासी अमल के अंदर अपने आप को शरीक किया और सियासी जमातों को वोट दिए, उनको भी हम किसी तरह इग्नोर नहीं कर सकते। उनके लिए भी प्रोग्राम्स लॉन्च करने की जरूरत पड़ेगी और हम इंशाल्लाह ये डेफिसिट बजट हम इंशाल्लाह वफाक से लेंगे और गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। और हमारा जो डेवलपमेंट का बजट है वो 23 अरब, जबकि हमारे रिक्वायर्ड जो बजट था वो 33 अरब का था। सब्सिडी के मद में हमें 29 अरब रुपए की जरूरत थी, जबकि वफाक ने 20 अरब से कम करके 15 अरब दिए, जो कि ज्यादती है। हम चाहेंगे कि फेडरेशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। जो गिलगित बल्तिस्तान का हक है फाइनेंशियल, मतलब जो रिक्वायरमेंट्स है, उनको इंशाल्लाह वो पूरा करके दे। जीबी के स्टेटस के हवाले से बात ना करें, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के हवाले से बात ना करें तो तकरीर मुकम्मल नहीं होगी। इंतजामी सफर, इंतजामी सूफे का सफर आपके सामने है, ये आगे, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। अब मेहरबानी करें, जो पाकिस्तान के अंदर जिगर जमाते हैं और मेरी क़यादत भी मौजूद है, कि इंतजामी सफर को अबूरी सूबे तक के सफर तक को हम जल्दी से पूरा करें। इसके लिए हम जिद्दोजहद करना चाहते हैं। यहां पर मैं चेयरमैन साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा। आपने इलेक्शन के बाद जो मुकदमा लड़ा पाकिस्तान के ऐवान में गिलगित बल्तिस्तान का, आपने जिस तरह लड़ा, शायद मैं भी इस तरह नहीं लड़ सकता था। इस पे मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। आगे जो हमारा सबसे बड़ा मसला है लोड शेडिंग का, 7000 ग्लेशियर्स का किस्सा मैंने सुनाया, इंडस का मैंने किस्सा सुनाया, और जो पानी की बहुतात है वो सारी कुछ मैंने सुनाई। उसके बावजूद हमारे पास 22 घंटे की लोड शेडिंग है। ये 22 घंटे की लोड शेडिंग और ये पोटेंशियल, ये एक दूसरे को मैच नहीं करते। इसका मतलब ये है कि कहीं पे हमारी नाअहली है और कहीं पे फंड्स की कमी है। आज भी
फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से 54 मेगावाट का प्रोजेक्ट मौजूद है, हरपो पावर प्रोजेक्ट मौजूद है, हैंजल पावर प्रोजेक्ट मौजूद है, शगरथंग पावर प्रोजेक्ट मौजूद है, गवाड़ी मौजूद था जिसको हमारी शायद बदकिस्मती हमसे छीना गया। हम ये कोशिश करेंगे ये सारे प्रोजेक्ट्स को हंगामी बुनियाद पे, डे टू डे की बुनियाद पे हम इसको लेंगे, डे टू डे की बुनियाद। एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होगा, इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर किसी भी किस्म की सुस्ती काहिली को बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा भी हमारे पास पावर के बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं। KIU का 100 मेगावाट है, फंडर के अंदर 80 मेगावाट है, सकारकोई के अंदर 15 मेगावाट है, सोनीकोट के अंदर भी है। इस गिलगित शहर के अंदर ही कम से कम मतलब 200 मेगावाट का पोटेंशियल है। बल्तिस्तान के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल मौजूद है, अस्तौर के अंदर पोटेंशियल मौजूद है, और दियामर के अंदर जो पोटेंशियल मौजूद है। इस वक्त हमारे पास जो रिकॉर्डेड फिजिबिलिटीज बनी है वो 1000 मेगावाट की बनी है, जिसके ऊपर PPP मोड पे हमें काम करने की जरूरत है। और अच्छा, हम वादा भी करें कि 5 साल पूरे हों तो गिलगित बल्तिस्तान से लोड शेडिंग का खात्मा हो। ये बिजली की लोड शेडिंग उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक बिजली के बिल अदा नहीं होंगे। हम बिजली के बिलों के ऊपर भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। बिजली के बिल पेमेंट होंगे तो जाके ये सारा अमल होगा। हमने इसके ऊपर भी GBDO